All right, guys. Welcome to the top 5 of this week. तो करना. Yeah, guys. This week, so many things from restaurant bar to express highway to मुफ्त की रेवड़ियां and so much of our expressions. बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो बात बिल्कुल नहीं की जा रही है. And those issues are scary, guys. So please understand that. Again, I'm telling you, we love and respect our Prime Minister, but there are so many things that Godi media is not talking about it, and we have to talk about it because it's about country and country first. You know, guys, GST was a big issue. It's on chapati, paneer, doodh, dahi, all these things, but this is actually going to affect us in the future. Scientific equipments पर भी GST बढ़ा दी गई है. अरे साइंटिस्ट कैसे काम करेंगे आगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ तो सोचो. सुनते हैं आप. On the other hand, we are hearing that the government is spending 940 crore rupees on the media and on the other promotional activities. राक्षस हो गए राक्षस. I mean, how unfair is that? कोई भी सच्चा देशभक्त हो, मैं आप कोई भी होगा, चलो रोटी पे जीएसटी दे भी देंगे, पर साइंटिस्ट को कभी कमी नहीं होनी चाहिए. वो आगे काम करते रहे, देश बढ़ता रहेगा. लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है. And I'm not denying on that fact that our prime minister is also having a scientific brain. Mathematical formula देते रहते हैं. ये एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी कभी केमिस्ट्री हो जाती है नाले के पानी से, बहुत सारी चीजें. पर वो तो ठीक है, पर जो रियल साइंटिस्ट है उनके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए. चल बे भाइयों बहनों, this is not good. I know people are all talking about this restaurant and bar and why this and why that. We're going to talk about it more. And what bow is this? It's a pork bow. Pork bow. Okay. One more important. सुनते हैं आप. Why people are leaving India? बाय बाय. I mean, this data is scary, and this data came from the Home Ministry. भारत में पिछले 3 सालों में लगभग 4 लाख लोगों ने नागरिकता अपनी छोड़ दी. टाटा, गुड बाय. देखो, एरे गेरे नत्थु गेरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ये वो लोग हैं जो समृद्ध थे, पढ़े लिखे थे, काबिलियत रखते थे, हजार और लोगों को रोजगार देने की. ये लोग देश छोड़ के जा रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा 1,70,795 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले ली. It's a big loss for the country and the data is increasing. गया. In 2019 it was 1,44,000. फिर कोरोना की वजह से 2020 में थोड़ा सा गिरा 85,000 अराउंड, और 2021 में 1,63,000. और ये डेटा होम मिनिस्ट्री से आया है. Why people are leaving the country? That's a big question. So yeah, guys, think about it. ये डेटा है जो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री से आया है, लेकिन गोदी मीडिया आपको बात करते हुए नहीं दिखेगा. कैमरा ईश्वर कर दो तुम. Let's come on the lighter note. प्यार के बारे में. Love is a really simple thing. Humans are complicated. पर वो प्यार अगर आप ह्यूमन से करो ही मत, नॉन लिविंग थिंग से करो, तो प्यार बढ़ता ही चला जाता है. चाहे वो फिर कैमरा हो, लाइट्स हो, स्टूडियो हो. कैमरे की बात कर रहा हूं. मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, शादी भी करेंगे. Okay, now this video, the camera love we are talking about, it's a morphed video. Okay, that's why we are re-uploading it. तो ये वीडियो ऐसा गया था कुछ, but morphed video था. Outgoing President Kovind was insulted by Prime Minister Modi. BJP has fact-checked our president insult claim. Yeah, the farewell ceremony of our ex-president. The full video by BJP shows that Modi had greeted the president and Kovind had shook hands with the Prime Minister. And sir, प्लीज उनको तो देख लो. जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है. So yeah, we love and respect the Prime Minister, but थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है. अरे मोदी जी वो हाथ मिलाने के लिए खड़े, वो जा रहे हैं, उसके बाद वो नहीं आएंगे. दूसरे राष्ट्रपति आ चुके हैं, क्या कर रहे हो? चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम. कैमरा ईश्वर कर दो तुम. Come on, Modi, just look at him once. Come on, leave the camera. This is called true love. Oh my God, true love. But let me tell you, it was a morphed video, and how they morphed it, even they fooled us also. हम भी धोखा खा गए थे यार, इसलिए तो री-अपलोड कर रहे हैं कि ये morphed video था ताकि गलत इन्फॉर्मेशन ना फैले. तो ये ऐसे morph किया था. Edited version is the left one that you see on your screens right there. This is the edited version that's been put out where it looks visually like former President Ramnath Kovind was snubbed by Prime Minister Narendra Modi. पर एक बात तो माननी पड़ेगी, that he is very particular about pictures. No, you have to agree with that. And we love and respect him. It's not a bad thing. Come on, ये पहले भी हो चुका है. कार में बैठ के जा रहे हैं,
लाइट ऑन करना नहीं भूले, क्योंकि अगर कोई बाहर से रिमोटली पिक्चर लेगा तो आनी तो चाहिए। Everything should shine and looks beautiful. Yes, it was so shiny, it was beautiful, and we all were so happy. Yes, I'm talking about this expressway when Modi ji tweeted about it. I mean, wow. एक्सप्रेसवे तय वक्त से पहले और अनुमानित लागत से कम में तैयार हुआ है। Literally दिल से गाना बजा था। अच्छे दिन आने वाले हैं। And usual after few days. Several days later. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 दिन पहले लोकार्पित हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने का मामला सामने आया है। इसको भी क्या डिफेंड किया, कहते बहुत सारे लोग एक कार में बैठ के जाओगे तो रोड तो खराब हो ही जाएगा, हैं? एक बंदा एक कार में जाएगा। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। इस एक्चुअली एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन के टाइम मोदी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, मुफ्त की रेवड़ियां। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की। And the politics started, आप versus BJP, we are not going to talk about it. But the word मुफ्त की रेवड़ियां, देखो दोस्तों, मुफ्त का तो कुछ भी नहीं है देश में, कुछ भी नहीं। ये आप कभी मत समझिएगा कि मुफ्त में मिल रहा है। ये आप, मैं पेन लाया हूं, इस पे भी मैंने टैक्स दिया हुआ है, तो it's not like that. Yeah, Mr. Manoj Jha explained it really well, and the government and all the political parties should listen to it and understand that the common man of India is paying way too much. It's not free. फ्रीबीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर, मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक, थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तो जनता तो मुफ्त का नहीं खा रही है। अरे आप देते क्या हैं? अनाज, एक वैक्सीन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। लेकिन हाँ, नेता लोग मुफ्त का जरूर खाना चाहते हैं। नहीं, भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है भाई। एक भुट्टे वाला जो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा है, उससे भी भुट्टा फ्री मांग रहे थे नेताजी। वीडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला में एक भुट्टे की कीमत सुनकर चौंक गए। वो मंडला जा रहे थे, तभी सड़क के किनारे एक युवक भुट्टा बेचता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मंत्री जी ने गाड़ी रुकवाई और भुट्टा खरीदने के लिए गाड़ी से उतर गए। It was like, give me some मुफ्त का रेवड़ी। मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। This is called free की रेवड़ी, okay? But it is time it is भुट्टा। नहीं, भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है भाई। And right now, the biggest thing that you all are waiting for, yes, dear Smriti Irani ji. Their restaurant and bar of the Goa, then they hide it, then people went over there and they scratched it. रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। Though, you know, press conference was going on, Mr. Pawan Kheda. 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। अर्ज किया है कि जिंदा को नहीं मिल रही है दाल और मुर्दों के नाम पे हो रहा है व्यापार। स्मृति ईरानी जी, she was pretty dramatic, don't you think so? I mean, if normally you want to say something, you will say, yeah, मैं आपको कोर्ट का नोटिस भेजूंगी। She always adds some little bit of emotions and expression into her speech, and she was like, मैं तुम्हें कोर्ट का नोटिस भेजूंगी। Da 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 da. I will see you in the court of law and in the court of people. And there was beef and pork they were serving. Even I don't eat that. तो ये सारी बातें चल रही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बात की, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है। बट आम आदमी की बात की जाए तो अगर स्मृति ईरानी जी सिर्फ एक बारी, सिर्फ एक बारी, just once, she should open her mouth and said that yes, the gas cylinder prices are increasing. फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आम आदमी उनके साथ खड़ा होता अभी, लेकिन अभी सब ये पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, वो उनको ब्लेम कर रहे हैं। आम आदमी सच में बहुत परेशान है। सुन रहे हैं आप? कुछ कीजिए।
This is a damn good defense. If you ask about gas prices, inflation, petrol prices, they will tell you that we are spending on vaccination. क्या तमाम सरकारें अपने अपने पेट स्कीम को जारी रखने के लिए आम आदमी से टैक्स वसूली कर रही हैं इस देश में? इसको मुफ्त की रेवड़ी तो नहीं बोला गया, पर मुफ्त में बोल के अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ. But the thing is, Anjana ji is not ready to listen to that. If you remember last time Godi. ये कोविड वाला मामला कब तक चलता रहेगा टीकाकरण के लिए? उसके बाद लाभार्थी जो आप देते हैं स्कीम देते रहते हैं. So yeah guys, this is not the right way to do the things. The politicians should think about the common man more, not about themselves only. खेलने वाले बैठ के देखेंगे. So yeah guys, that was today's video and yes. नए खिलाड़ी खेलेंगे. हम किसी पार्टी पुटी को सपोर्ट नहीं करते. जनता सच में बहुत त्रस्त है. जो मुद्दे मीडिया दबा जाता है हिंदू मुस्लिम की आड़ में, ये वो फलाना ठिकाना, वो हम आप तक लेके आते हैं. हमारी बस यही मंशा है कि देश शक्तिशाली हो, देश बड़ा हो, देश समृद्ध हो. जय हिंद, वंदे मातरम.